Jai
Hare Krishna, Srila Gurudev. Please accept our humble obeisances unto your divine lotus feet. All glories to you, all glories to Srila Bhakti Tirtha Maharaj, all glories to Srila Prabhupada, ISKCON founder Acharya and savior of the whole world. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, Srila Gurudev. Please accept our humble obeisances. Srila Gurudev. Yes, Gurudev. Devotees are joining gradually. Now we have 28 devotees. Yes, Gurudev. Srila Gurudev, I would just like to tell that many devotees are going to listen first time about Her Grace Ladini Mataji. And also many devotees are going to hear in Hindi. So I will be translating parallel for the Hindi devotees. Many of them are, they are going to understand Hindi. So, Srila Gurudev, this group devotees who are coming together to strengthen their sadhana, making their sadhana strong. So they wanted to hear always about some spiritual warriors, some pure devotees, by whose character, their life, their teachings, we can become strong in our sadhana. And we have been hearing from many years from various devotees about Mother Ladini and also about her connection, a special connection to Srila Bhakti Tirtha Maharaj and to Africa, especially West Africa. And Srila Bhakti Tirtha Maharaj has written very strong, very powerful foreword in the book Legacy of Love by Her Grace Yamuna Mataji. She compiled. And Maharaj writes that Mataji is one of the devotee, as if she is right out of the Chaitanya Charitamrita. She is one of the character, one of the role model for the devotees, one of the general who is very powerful, compassionate, and very pure. So Srila Gurudev, we also heard that you had association with Mataji and you have seen, so you know more than any of the devotees who can wonderfully tell about her. And I was just now reading in Srimad Bhagavatam 3:25 that in association of pure devotees, one can release the best about the qualities, name, form, pastimes of Lord Krishna and Krishna devotee. So we cannot have anyone best in our life than you.
who can tell about another pure devotee and can get inspiration. Srila Gurudev. So first of all, Srila Gurudev, I will like to offer my respectful obeisances unto you, who has opened my eyes with the torchlight of knowledge, which were blinded by the darkness of ignorance. And we are very, very grateful and thankful for your time, for all of the devotees who want to become serious in their sadhana and who want to follow the footsteps of our previous acharyas and strong devotee like Ladini Mataji. Thank you very much, Srila Gurudev. Srila Gurudev, we have garland from Vrindavan, a rose garland for you. Please accept. Thank you very much. Thank you very much, Srila Gurudev. Thank you. Seeing the gallant, I'm just feeling happy. Just seeing the gallant. So, from Braj, Bridget Bassi. Makes me feel happy just to see the gallant. Thank you very much for offering the gallant. Thank you, Srila Gurudev. Remembering me of Braj. So what should I do now? Yes, Srila Gurudev. So Gurudev, we would like to hear in details about Mataji's life and whatever you have seen personally and what we can learn, and also the interaction of Srila Bhakti Tirth Maharaj, Srila Param Gurudev with Mataji and her connection to the Lordship, which can inspire us neophyte devotees to go ahead in spite of all the challenges, and we can become very enthusiastic and determined following her footsteps. Okay. And I will, Srila Gurudev, by your permission, I would like to translate in Hindi parallel with you. Thank you. Bye-bye. Yes, Gurudev. Magyana Timirandasya Gyan Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Guravi Namaha Sri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadati Swapantika Vandeham Sri Gurun Sri Utapadakamanam Sri Gurun Vaishnavam Nischa Sri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Gopisai Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Yat Vanchakal Pataru Jascha Kripa Sandhya Vacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Jai Bhutale Srimati Bhakti Tirtha Shanti Krishna Hare Prabhupada Shaitan Shri Gaura Karma Sati Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna. I'm happy to be with you
this afternoon. मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज के इस दोपहर में आप सब भक्तों के साथ इस कार्यक्रम में, And extremely happy to remember Her Grace Ladini Devi. और अत्यंत गदगद हूँ स्मरण करते हुए श्रीमती लादनी माता जी को। A few years ago, His Holiness Baptista Maharaj announced that the two sannyasi ladies were coming to West Africa. कुछ वर्षों पहले की बात है कि शिला भक्ति तीर्थ महाराज को पता चला कि दो औरतें जिन्होंने संन्यास ले लिया है इस्कॉन में, वो लोग पश्चिम अफ्रीका आ रही हैं। It was new for us to hear women sannyasi. It was new for us. और ऐसा सुनना हमारे लिए बहुत नई बात थी कि स्त्री संन्यास ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था इस्कॉन में, पहली बार हो रहा था। So when they came, there were two. तो When एक they दिन वो came, लोग आई, they were named Kirtanana Swami in New Vrindavan. उनको Rishikesh, कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने न्यू वृंदावन में उनको ये दीक्षा दिया था, संन्यास दीक्षा। Rishikesh Swami, and then we have Bhagavad Bhagavati Swami. और ऋषिकेश महाराज और कीर्तनानंद महाराज, इन सब लोगों ने उनको दीक्षा दिया था। So both of them are Srila Prabhupada disciples. और ये दोनों माताएं प्रभुपाद जी की शिष्य थी। So we we pleased to see them. तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई उनको देखकर। At the same time, we were anxious to know how they would function or how they have been functioning. और हम लोग को बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा भी हुई कि अब वो लोग यहाँ क्या करेंगे और वो लोग वहाँ क्या करते होंगे, संन्यास कैसे ले लिया, ये सब बातों को देख के उत्सुकता हो रही थी। So His Holiness Bhakti Chamara was engaging them in giving classes, regular classes, Bhagavatam classes, Bhagavad Gita classes regularly. Every day they were speaking and we were listening. तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको सेवा दिया, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का हमेशा रेगुलर क्लास देने के लिए, और हम लोग उनकी क्लास अटेंड करते थे। The philosophy they spoke was correct. It was wonderful, very sweet. We enjoyed everything. जो ज्ञान वो लोग बोल रही थी, दर्शन जो दे रही थी, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। After some times, Gurudev mentioned that he's going to change them back to the normal way they have been before taking sannyas because it was not authentic. It was not authentic. और कुछ दिन बाद भक्ति तीर्थ महाराज परम गुरुदेव ने ऐसा बोला कि इन लोगों को संन्यास नहीं लेना चाहिए, जैसा संन्यास के पहले ये लोग सिंपल माता जी थी वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि यह प्रामाणिक नहीं है हमारे इस्कॉन परंपरा में। He discussed with both of them in his room first. उन्होंने पहले चर्चा की दोनों माताओं से, Then he spoke generally in the class, the temple room. फिर उन्होंने कक्षा में भी बोला, मंदिर में बोला सबके सामने। And finally, he asked them to change, so they were given different normal dress to wear. और फिर अंततः उनका संन्यास बदला गया और उनको जो सामान्य जो उनकी पोशाक थी, नॉर्मल ड्रेस, वो उनको दी गई पहनने के लिए। Ladini Mataji, she accepted fully and changed back to normal sari as before.
लादनी माता जी ने ये सब स्वीकार कर लिया बड़े ही हर्ष के साथ। उन्होंने पहले की तरीके से साड़ी पहनना शुरू कर दिया जैसे पहले पहनती थी। Maha Begavati, she found it very difficult to adjust back to, to her normal David Darcy title. जो दूसरी माता जी थी महाभागवती देवीदासी, उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि अभी तो पहले तो सन्यासिनी थी, अब सन्यासिनी से देवीदासी दोबारा कैसे बनेंगी। थोड़ा उनको तकलीफ हुई ये सहन करने में, ये चेंज करने में। We also were seeing differences between them. और हम भी देख रहे थे कि इन दोनों माताओं का जो विचार था वो अलग अलग था। This differences we saw was not their body because both of them are American ladies, the Americans. वैसे तो दोनों अमेरिकन थी, तो शरीर तो दोनों का एक ही था, अमेरिकन था। The differences we were seeing was based on how they were behaving. लेकिन जो मतभेद था उन दोनों के आचरण में था। Therefore, naturally, all of us devotees, all of us, we automatically followed Ladini Shakti, Ladini Devi. तो स्वाभाविकता ही जब हमने देखा कि लादनी माता जी का आचरण बहुत प्रामाणिक था, तो हम लोगों ने स्वभाव रूप से ही अपना उनको लीडर मान लिया, लादनी माता जी को। In West Africa, Gurudev, he has different style of preaching. पश्चिम अफ्रीका में परम गुरुदेव का एक अलग तरीका था प्रचार करने का। He has preaching services with the television. वो टीवी में प्रचार करते थे। When he's going to a television houses to preach, he will carry his asana to the television house. जब भी वो जाते थे टेलीविजन के शो पर, तो हम सारे भक्त शिष्यगण उनका आसन लेके वहां जाते थे, वहां शो पर, व्यासासन। So Ladini and Meha Begawati Devi, they will sit by her side. Gurudev is in the middle, the two of them sit in the front. तो ये दोनों But माताएं more than his asana. गुरुदेव के सामने बैठती थी, मतलब नीचे लेकिन सामने, दोनों तरफ, अगल बगल में। So he will speak, and then after he will give chance to the two of them to speak also. तो पहले परम गुरुदेव बोलते थे, उसके बाद ये दोनों माताएं बोलती थी। We'll be finding Gurudev from Speaker Fine and the Chamar on the side. और हम शिष्यगण दोनों तरफ से, चामर से, पंखे से गुरुदेव को पंखा करते थे, गुरु महाराज को। It's a very common sight. It's a very common sight in the whole West Africa. और ये तो बहुत ही नॉर्मल दृश्य था अफ्रीका में। It's every year when I told Krishna Prabhu in Mayapur, when he's speaking about Gurudev, he always remember. Gurudev, you see on Asan, even right in the morning on Asan, he does japa, Asan also he does lecture. He always remember to say that in his presentation. श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जब भी मायापुर में परम गुरुदेव भक्ति तीर्थ महाराज की व्यास पूजा में बोलते हैं, वो हमेशा इस दृश्य का स्मरण करते हैं कि कैसे भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रीका में वो हमेशा आसन में बैठ के जप करते थे, फिर आसन में क्लास देंगे, फिर कहीं भी जाएंगे तो वहां उनका आसन जाएगा। हमेशा बहुत रॉयल लुक रहता था उनका। He traditionally is a king. क्योंकि सांस्कृतिक रूप से देखा जाए और पारंपरिक रूप से तो ये राजा का रूप है। So Rajarishi, they have a throne, so he will sit on asana. और क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज भी एक राजऋषि थे, तो इसीलिए वो आसन में बैठते थे, उनका कर्तव्य है। That is normal for African because we have the tradition, monarchical hierarchy is here in Africa. और ये स्वाभाविक है क्योंकि ये परंपरा में, ये राजा की जो परंपरा है वो अफ्रीका में अभी भी चली आ रही है। And traditionally, in Vedic tradition also, king they sit on asan on a throne. और वैदिक परंपरा में भी राजा लोग बड़े सिंहासन पर बैठते थे, नियम था ये।
So he sit on asan in the temple. He sit on asan, but we also have a television program, radio program. तो भक्ति तीर्थ महाराज कहीं भी जाते थे, टीवी प्रोग्राम में, रेडियो प्रोग्राम में, तो हमेशा अपने व्यास आसन सिंहासन पे बैठते थे। We have a house program. A house program also. But then if it's a big house, you also go with asan. He has his throne. अगर किसी के घर में जाना है और घर बहुत बड़ा है, तो उनका अपना खुद का एक सिंहासन था, उसको लेकर जाएंगे, उस पर बैठते थे। It is traditional for a king to have his special seat. क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है कि उसके लिए एक अलग सिंहासन होना चाहिए जिसपे बैठ के वो अपना राज करता है। Even the queen will have her own separate seat. We don't sit on the king's throne. We sit on her own separate seat. जैसे यहाँ तक कि रानी भी, वो भी राजा की सीट पे नहीं बैठ सकती, उसके लिए अलग कुर्सी होती है, उसका अलग सिंहासन होता है। So for us in Africa, that is normal. It's normal. It's a normal culture to see a king sitting on the throne. तो हम सब के लिए, हम अफ्रीकन्स के लिए ये एक सामान्य दृश्य था कि देखना एक राजा को सिंहासन पे बैठना। So in this way, he has engaged Ladini Mataji and Meghabadi Mataji in preaching. In all his preaching activities, he engaged both of them. तो इस प्रकार परम गुरुदेव ने सारे प्रचार कार्यों में लादिनी माता जी और महाभागवती माता जी को लगाया। They will also travel the whole country, the whole West Africa temples for preaching, like Gurudev does. और ये दोनों माताएं पश्चिम अफ्रीका के सारे देशों में हमेशा यात्रा करती थी, जैसे कि परम गुरुदेव करते थे। Ladini Mataji was exceptionally good. और लादिनी माता जी बहुत अद्भुत थी, महान थी। Her determination is not like a woman. Her determination is like that of a hero, a warrior, a king, or a man. Say a man. उनका दृढ़ संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ व्रत एक सामान्य औरत के तरीके नहीं था, वो एक हीरो के तरीके थी, वो एक योद्धा थी, वो एक राजा थी, वो एक सोल्जर थी। She has a woman body, but her consciousness, her nature, her boldness, her braveness is that of a man. शरीर में तो वो औरत थी, लेकिन जो उनकी बहादुरी, उनकी कुशलता, उनकी दक्षता, वो पुरुष के तरीके थी। But she does not boast anyone. लेकिन वो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाती थी। Her boldness is in presenting Christian consciousness, is in presenting Christian devotional service, not the commanding people. वो अपनी बहादुरी का इस्तेमाल शोषण करने में नहीं करती थी, वो कृष्ण भावना मत का प्रचार प्रसार जोर से किया जाए, इसमें अपनी बहादुरी को दिखाती थी। Therefore, she preaches fearlessly. और वो निडर होकर, निर्भय होकर प्रचार करती थी। That was the reason why she was killed in Liberia. इसी कारण से लाइबेरिया में उनकी मौत हुई। The rebel soldier were not going to kill her because she's a woman and also she's American, but because she challenged after they killed devotees, she couldn't tolerate that, which is anti-Semitic. They killed the devotees, so she held the army general. वो जो आतंकवादी थे, Can you do this? Which is not for a woman, but she did it. वो जो आतंकवादी थे, वे औरतों को और अमेरिकन को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन माताजी ने जानबूझकर ये चैलेंज, ये दुस्साहस किया कि आप मेरे सामने अन्य वैष्णवों की हत्या नहीं कर सकते, और वो बोली कि मैं आपके आगे आऊंगी, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। It was because she challenged the army general appropriately, not out of false ego, appropriately, based on the scripture. The devotees will intervene when another devotee is attacked. She did just that. उन्होंने शास्त्रों का मत पालन किया
और इस प्रकार उन्होंने यह दुस्साहस किया कि जो वहां का जो आर्मी जनरल था, जो सबसे आतंकवादियों का जो सबसे बड़ा गुंडा था, उसके सामने भी उन्होंने दुस्साहस उठाया उसको रोकने का, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। She was very bold. बहुत अत्यंत निर्भय और साहसी थी, She is fearless. निडर थी, And she knows how to apply the Krishna consciousness in all situations. उनको पता था कृष्ण भावना मत को हर स्थिति में कैसे अपनाना है, कैसे प्रचार करना है। So we show that quality in her, that she's very bold in her preaching, both in and outside. She's यह bold. यह गुण हमने देखा, वो अंदर भी मंदिर के और मंदिर के बाहर भी बहुत निर्भय और साहसी थी। We really appreciate her. और हम उनकी प्रशंसा करते हैं She's वास्तविकता very, में। very, very compassionate. Very, very compassionate. अत्यंत करुणावान, करुणाशील थी, अत्यंत। She doesn't like to see any devotee in difficulty. She will cry. If you see any devotee in difficulty, she can cry. Although she's very bold, when she see devotee in difficulty, she can cry like a baby. वो कभी भी किसी भक्त को विपत्ति में नहीं देख सकती थी, और अगर किसी को देखती थी तो तुरंत उन्हें रोना आता था, जैसे एक छोटे बच्चे के तरीके कोई रोता है, ऐसे वो रोती थी दूसरों का दुख देखकर। She feel the pains of others than herself. दूसरों के दुख से वो अधिक दुखी होती थी बजाय कि अपने दुख से। She's very, very merciful. अत्यंत कृपालु थी, Very, very kind. बहुत दयालु थी। She would distribute all her personal property, remaining only one sari on her body. जो कुछ भी सामान था उनके पास, सामग्री थी, सब कुछ वो बांट देती थी, मात्र एक साड़ी जो पहने होती थी उसको छोड़कर सब बांट देंगी दूसरों की सहायता करने के लिए। That's how merciful she is. इतनी कृपालु थी वो। Mm. You're right? यस गुरुदेव। Okay. I think my network was cutting, so I saw that's why I waited so we don't miss anything. सॉरी गुरुदेव, आई एम ओके, आई एम रेडी। Okay. Yes, so we're talking about how merciful Ladini Mataji is. कितनी वो दयालु थी हमने अभी सुना लालजी माता के बारे में। She feels our pains more than her own self. वो हमारे दुख को अधिक देखती थी बजाय कि अपने दुख के। She cares for devotees more than herself. वो हर एक भक्त का देखभाल करती थी अपने से अधिक। When she's speaking Chaitanya Lila, you feel that she's just part of the Chaitanya entourage. जब वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का बखान करती थी, गुणगान करती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक संगी हैं। She will make all the persons present. सारी लीलाओं को ऐसे बोलती थी कि साक्षात हमारी आंखों के सामने उनका दर्शन हो रहा है। So when she's in Chaitanya Lila, every devotee will be awake. जब वो यहाँ पर थी और जब वो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करती थी, हर भक्त हमेशा जगा रहता था, कभी सोता नहीं था। She knows all the persons of Chaitanya Mahaprabhu intimately.
महाप्रभु की सारी लीलाएं उन्हें अंतरंग ढंग से पता थी। And because of that, she would present it with feelings, and every devotee would feel it. और इसीलिए क्योंकि उनको सब कुछ पता था, वो भाव से इनका वर्णन करती थी और वही भाव भक्तों के हृदय में भी जाता था। It was when she came to West Africa that we know something like Bhima Boga. We don't know what is Bhima Boga. Bhima Boga. तो जब वो पश्चिम अफ्रीका आई, तब हमने ये सुना पहली बार ये शब्द भीम भोगा। No? भीम भोगा। Bhima Boga, you know? Have you eaten that before? न When she was in Africa, she was making Bhima Boga. It's heavy. जब वो अफ्रीका आई, If you take one, you won't eat for the whole day. अगर आप वो भोग को लेंगे, एक उसका पार्ट, तो आपको दिन भर खा नहीं पाएंगे, इतना होता था वो भीम भोगा। She was cooking our festival, all our festivals. She was the chief cook for all our festivals. हमारे त्योहारों में वो प्रमुख कुक थी, रसोइयां थी। वो सारा खाना हमारा वही वही बनाती थी त्योहारों में, वो सबसे मेन थी। So whenever there is festival, everyone shout Bima Boga. Because जब भी कोई त्योहार we're होता था, sure that it's going to make it. सब लोग बोलते थे भीम भोगा, भीम भोगा, ताकि माता जी उसको बनाए। We have never heard of it before, but she brought it. She was making every time. Well, make it. सब त्योहारों में वो इसको बनाती थी, सारे त्योहारों में भीम भोगा बनता था। Then also she introduced Varuni beverage for Balaram's appearance there. She introduced Varuni beverage. और फिर बलराम जयंती में उन्होंने ये जो पदार्थ था, इसका वरुणी, वरुणी नामक जो जूस था, उसको लेकर आई। We read in a Christian book, but don't know what is Varuni. So we okay, honey. So that is okay. But once she came and prepared Varuni beverage, it's another thing entirely, completely different thing entirely. हम लोगों ने मात्र सहज सुन रखा था, लेकिन जब उन्होंने बनाया ये वरुणी रस, तो बिल्कुल ये दिव्य था, अनोखा था, अद्भुत था हम सबके लिए। वरुणी रस She will cook from morning till night. सुबह से लेकर रात तक खाना पकाती थी। And she perfectly arranged herself from morning till night she's cooking. और वो अपनी सारी साधना और सेवा को ऐसे करती थी ताकि सुबह से लेकर रात तक वो अच्छे से खाना बना पाए। As soon as she finished cooking, और जैसे ही खाना बनना बंद हो जाएगा, खत्म she होगा, joined the kirtan. वो तुरंत आएंगी कीर्तन करने के लिए। In the kirtan, her hands are up throughout the whole 1 hour. Our Sunday Arati here is 1 hour, not 30 minutes, 1 hour. Her hands are up completely for the whole 1 hour, always, always dancing throughout. अफ्रीका में हम लोग गौर आरती 1 घंटे की करते हैं, और पूरे कीर्तन में 1 घंटे तक उनका हाथ हमेशा ऊपर रहता था, हमेशा 1 घंटे तक। She dances throughout, and after the kirtan, she will collapse on the floor. और पूरा 1 घंटा वो खूब नृत्य करेंगी, और उसके बाद थक के गिर जाएंगी। That's her experience. So every devotee who like to dance or doesn't like to dance, see how he must be forced to dance. तो कोई भी भक्त जिसकी इच्छा हो या इच्छा ना हो, अगर वो माता जी को देखता है नृत्य करते हुए, तो उसको नृत्य करना ही पड़ेगा। इतना उत्साहमयी थी माता जी। Kirtan, all kirtans is there.
सब कीर्तन में वो आपको मिलेंगी, सब कीर्तन में आपको मिलेंगी उपस्थित। Never a dull moment for her. Never. There's no dull moment for her. कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आलसी बैठी हैं, कभी उनके जीवन में कोई आलस छा गया है, ऐसा कभी नहीं होगा, एक क्षण भी नहीं होगा। First thing in the morning, she has a golden tie. She has a golden tie, which she will go to the altar to attend to them. सुबह जब उठेंगी, उनके अपने खुद के गौ निताय थे, वो गौ निताय की सेवा करेंगे सबसे पहले सुबह उठ के। She's cooking, she's teaching, or she's making dresses for the deities. There is no dull moment for her the whole day, fully occupied. डीटी को सुबह उठाएंगी, ड्रेस बनाएंगी, उनके लिए भोग बनाएंगी, कभी भी पूरे दिन भर, कभी भी एक क्षण भी आलसी के तरीके नहीं बैठेंगी। The devotees were all attracted to her. इस You, प्रकार you can, सारे सारे भक्त, सारे वैष्णव उनसे अति आकर्षित थे। we are not afraid to meet her anytime and ask questions. और हमें कोई भी डर या शर्म नहीं थी कि हम माता जी से कब मिल सकते हैं, कब नहीं। हम लोग कभी भी उनके पास जा सकते थे। Always ready to attend to any devotee, anytime. हमें हमेशा वो मिलने के लिए तैयार थे, किसी भक्त को भी, हमेशा। We're very happy that Gurudev brought them to West Africa. हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गुरु महाराज भक्ति तीर्थ महाराज उनको पश्चिम अफ्रीका में लेकर आए। And then I used to observe her when she finishes from the altar. She will come out from the altar and she will go directly to the Tulsi garden and she will pour the water there. और मैं उनको देखता था ध्यान पूर्वक कि जब वो ऑल्टर में पूजा करके भोग बना के सेवा करके बाहर आएंगी, तुरंत जाएंगी तुलसी महारानी के बगीचे में और तुलसी महारानी को पानी देंगी, जल देंगी। I observed her for a few times. और यह मैंने कई बार ऐसा देखा, ध्यान से देखा। So one morning I went and stood there waiting for her outside. और एक सुबह मैं वहां पहले चला गया और उनका इंतजार करने लगा कि वो आएंगी। So when she came जब वो आई and poured the water there, और उन्होंने पानी डाला तुलसी महारानी में, so I asked her, excuse me, can this water be taken or only to be thrown away? Can someone take this water? She said yes. तो मैंने उनको पूछा कि क्या यह जो महाजल है इसको फेंकना ही है कि हम इसको ले भी सकते हैं। So I said, please, can you give it to me? तो मैंने बोला क्या आप मुझे दे सकती हैं? She said yes, but I have thrown away to this one tomorrow. I said yes, tomorrow. I'm ready for it. वो बोली हाँ आज हमने फेंक दिया है, कल आपको देंगे, आप तैयार रहिएगा। So the next morning I was waiting also there. So she came and gave me the water. अगले सुबह वो आई और उन्होंने वह जल दिया गुरुदेव को। So I was drinking it every day. इस प्रकार मैं रोज वो जल पीता था, महाजल। One day she told me, see what you're doing, you'll be mad one day. और वो एक दिन मुझे बोली कि तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, एक दिन तुम पागल हो जाओगे प्रेम में। You know what you're doing? This water, you'll be mad one day. तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, यह महाजल तुमको प्रेम में पागल कर देगा। I say, yes, I want that madness. Give me. I will drink. Give me. So every मैंने morning, बोला मैंने बोला हाँ मुझे यही पागलपन चाहिए, आप मुझे रोज ये जल दो। that is how we came together. We became close to each other. और इस प्रकार हम दोनों का जो संबंध है वो थोड़ा थोड़ा स्थापित हुआ, हम लोग एक दूसरे को जाने। Then she started telling me the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. फिर वो हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनाने लगी। She has a Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. These are favorite two books. They are always with her. उनके पास हमेशा ये दो पुस्तक होती थी, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितमृत, हमेशा।
She read them every day. और रोज पढ़ती थी वो, डेली रोज पढ़ती थी। So one day she told me, एक दिन मुझे बोली, "Are you reading Bhagavatam every day?" क्या तुम भागवतम डेली पढ़ते हो? I said, "No." मैंने बोला नहीं। "Why?" क्यों? "You must read every day." तुम्हें रोजाना पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम। It's okay. I will do that. मैंने बोला ठीक है, आज से करूंगा। So right from that time till now, I read because she encourages me to read every day. So I'm reading every day. तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैं रोज पढ़ता हूँ। And when I started reading every day, और जब मैं डेली पढ़ने लगा इस प्रकार, she will ask me what I was reading. तो वो मुझे पूछती थी, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? When I say, she will just continue from there. जब मैं उनको कुछ भी बोलता, तो वहीं से वो शुरू कर देती अपना पूरा सुनाने में भागवत। Our relationship became very close. इस प्रकार हमारा आध्यात्मिक संबंध अत्यंत मधुर और अंतरंग हो गया। Naturally, other devotees became envious. और स्वाभाविक स्वाभाविक है, अन्य भक्त मुझसे ईर्ष्या करने लगे। In the morning, सुबह before I would go there, many devotees are already gathered there waiting for her. जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, तो मेरे पहले ही बहुत सारे भक्त वहां पहुंच जाते थे। So, they want the water from her. They don't want her to give to me again. They want the water from क्योंकि ये सारे भक्त her. चाहते थे कि ये पानी गुरुदेव को ना मिले, तो इसलिए वो सब पहले से लाइन लगाते थे। So when she noticed that now devotees uh, are becoming envious, और जब उन्होंने यह देखा कि भक्त ईर्ष्यालु हो रहे हैं, and I didn't want to have any issue with anybody, so I withdrew myself. और मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहता था, तो मैं चुपचाप पीछे हो गया। So she very expertly handled the situation very nicely. और वो बहुत दक्ष थी, उन्होंने इस सारी समस्या का निवारण अच्छे से किया। Nobody asked her when she was throwing the water to the tulsi. Nobody asked her. पहले किसी ने नहीं पूछा जब वो ये महाजल तुलसी में डालती थी। They were seeing her every day. They were seeing her, but nobody approached her until I did. लोग देखते थे रोज, लेकिन किसी ने कभी उनसे मांगा नहीं। मांगा मैंने ही पहले। Now, before I go in the morning, many devotees are already there. और अब मुझसे पहले ये बहुत सारे भक्त वहां पहुंचते थे ताकि मुझको ना मिले So I ये जल। withdrew myself. तो मैं फिर पीछे हट गया, मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। So I removed my mind from it. और मैंने अपना मन निकाल दिया कि अब मुझे पानी नहीं मिलना है। I was surprised. और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर। In the afternoon, दोपहर में she sent the water to me in my office. माता जी ने मेरे ऑफिस में वो जल भेजा, महाजल। So she told me in the morning she would divide the water. उन्होंने बोला सुबह मैं इस पानी को आधा कर लेती हूँ। So she hide the ones she's going to give to me and bring the one I give to them. So they are thinking, yeah, she has given everything to them. आधा पानी उनको देती थी, सारे लोगों को, और बाकी जो बचा हुआ पानी वो गुरुदेव को भेजती थी। In the afternoon, she would send from her own, she would send it to me. और दोपहर में वो मेरे ऑफिस में पानी भेजती थी। So I became attracted because what her devotional qualities very high. उनके जो ये आध्यात्मिक गुण थे, अति महान, चरम सीमा पर थे। Her preaching, her attitude towards services, her friendly dealings with every devotee, her open our eyes to understand the importance of studying the scriptures became very, very prominent, became very glaring, and we appreciated her very much for that. और उनके बहुत सारे गुण, जैसे शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना, आपस में भक्तों के साथ बड़ा ही प्रीति का संबंध,
ये जो सारे उनके जो गुण थे, इन गुणों से हम लोग बहुत प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए, और हम हमेशा उनको देखना चाहते थे। Even once he travels out of Lagos temple to other places, she will keep the water, and whenever she sees someone coming, she will send it to him. और जब भी वो लागोस से बाहर कभी जाती थी प्रचार के लिए, तो हमेशा वो जल बचा कर रखती थी, और अगर कोई आ रहा होता था तो उनके हाथों गुरुदेव के लिए भेजती थी। Naturally, I became attracted. स्वाभाविक रूप से मैं उनकी ओर खिंचा चला गया। A person who is nurturing your Christian consciousness shouldn't be forgotten, should be appreciated, because that is how to make advancement. स्वाभाविक रूप से जो भक्त हमारी कृष्ण भावना मंत्र का सिंचन, पोषण, पालन कर रहा है, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। स्वाभाविक रूप से हमारा कृतज्ञता का भाव रहेगा। She trained, not only that, she was just very good in cooking. She trained many devotees. Himavati learned from her. Many other Ruchira Mataji, they all learned cooking from her. और बहुत सारे भक्तों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया कुकिंग में, जैसे रुचिरा माता जी जो वहाँ की हैं, Himavati also. हिमावती माता जी, Himavati was cooking for Gurudev, और हिमावती being माता जी trained by परम her. ये भोजन बनाती थी। Many other ladies with Madhura Leela were trained by her. और बहुत सारी स्त्रियों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, कैसे भोग बनाना है, कैसे खाना बनाना है। She trained so many ladies for cooking. उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों को यह प्रशिक्षण दिया खाना बनाने के लिए। Even men, Gurudas Prabhu and many others, Gurudas Prabhu was there, have other devotees who also learn cooking from her. और उन्होंने बहुत सारे पुरुषों जैसे गुरदास प्रभु, उन लोग को भी उन्होंने खाना पकाना सिखाया। So we enjoyed her association here in West Africa. तो इस प्रकार पश्चिम अफ्रीका में हमने उनके संग का पूरा पूरा लाभ लिया। So they were practically staying here. They would travel to other places, but they come back and stay in Africa. They were not going back to America. They were staying here in West Africa, and they assisted our preaching in West Africa. So in the history of Christian consciousness in West Africa, it is not complete without mentioning their effort. तो पश्चिम अफ्रीका में माता जी हमेशा रहती थी, वो अमेरिका नहीं जाती थी, और कहीं भी जाएंगी लौट के अफ्रीका में भी अपना बेस बनाएंगी। तो अगर कभी अफ्रीका में कृष्ण भावना मत का इतिहास लिखा जाएगा तो बिना उनके श्रम के, बिना उनके नाम के यह अधूरा होगा। So when we say a mother, she has the quality. She has the quality of a mother. तो हम जब बोलते हैं माँ, लादनी माँ, तो उनके अंदर यह माँ के गुण थे। And when you say devotee, she also has the quality of a devotee because she's a, what do you say, unalloyed devotee. No attachment for anything. She's free. और जब हम बोलते हैं एक शुद्ध भक्त, एक ऐसा भक्त जो हर प्रकार के कलमश से मुक्त है, तो हम ये भी गुण उनमें देखते हैं, वो एक शुद्ध भक्त भी थी। Her attachment to the scriptures, attachment to Chaitanya Lila is also very, very contagious. उनका जो आकर्षण था चैतन्य लीला और श्रीमद् भागवत शास्त्रों की ओर, यह भी बहुत सराहनीय था। When she left the body in Liberia, और जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा लाइबेरिया में, she came to me in a dream. मेरे स्वप्न में आई। In the dream, she came मेरे स्वप्न में आकर मुझे बोली and sat by my head. और मेरे सर के पास बैठ गई। That time we're not aware that she had been killed, but from the dream I was able to understand that also she left because she came to my dream and sat by my head. उस समय हमको पता नहीं था कि उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो मेरे सपने में आई और मेरे सर के पास बैठ गई, तो मैं समझ गया कि अब वो इस संसार में नहीं है। She came with 2 books, और वो 2 पुस्तक के साथ आई मेरे स्वप्न में, Srimad Bhagavatam and Chitta Chaitanya, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितमृत, and she gave them to me. और उन्होंने वो पुस्तक हमको दिया। So by her mercy, I am teaching Bhagavatam and the scriptures because of her mercy.
और उनकी ही कृपा से, उनके दयालुता से मैं श्रीमद् भागवत पढ़ाता हूँ, अन्य शास्त्रों को पढ़ाता हूँ। Physically, she told me to read these books, and even when she left the body, she came and gave the books to me. उन्होंने साक्षात मुझे बोला था सामने से कि आपको पुस्तक पढ़ना है, भागवत पढ़नी है, और मैं स्वप्न में आकर भी मुझे बोली कि आप भागवत शास्त्रों को पढ़ो। We regretted seriously missing her. हमको बड़ा पश्चाताप हुआ और हमको बड़ी ग्लानि हुई कि हमने उनको खो दिया, Because he contributed a lot to Krishna consciousness. उन्होंने हम सब के कृष्ण भावनामृत में बहुत योगदान दिया है, बहुत योगदान दिया है। So we are eternally indebted to Aladini Mataji for her support in our Krishna consciousness. तो हम शाश्वत रूप से ऋणी हैं लादिनी माता जी के, उनके सहयोग के लिए हमारी कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने में। All right. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच श्रील गुरुदेव। when you were narrating the pastime of Ladini Mataji, we were able to feel as if we are also a part of the team, and we were able to feel that it was so you were so nicely telling, because you were very much affected as you said, so that affection we could also feel of Ladini Mataji. Shila Gurudev, if with your permission, can we take some inquiries or questions or some? Yes. Yes. Thank you, Shila Gurudev. Anyone can ask something or want to comment something. You Yes, can go ahead. yes, Shila Gurudev. Thank you very much. तो कोई भी भक्त किसी को कुछ साझा करना है, कुछ कमेंट करना है, कुछ बोलना है, या किसी की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, तो बहुत ही शुभ अवसर है, गुरुदेव से आज पूछ सकते हैं जो भी हमने सुना। अभी हमारे पास 15 मिनट है, जल्दी से कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, गुरु महाराज से कहना था कि क्लास बहुत अच्छा था और बहुत ही मोटिवेशनल था। इस तरह की छोटी छोटी क्लास हमेशा गुरु महाराज लेते रहा करें, ऐसा करिए हमसे। थैंक यू। श्रील गुरुदेव, मीना माता जी फ्रॉम गोरखपुर, wife of Alok Prabhu, she is expressing her gratitude. Yes, I remember. I remember her. I remember Luke also. Yes, Shila Gurudev. गुरु So महाराज, Alok is here. Yes, I'm seeing Alok Prabhu here and his wife, Meena. Hare Krishna. So what is your contribution? So she is contributing that the class was very, very inspirational. It touched our heart, and such classes should be regularly conducted so that we can get the feelings of such devotees in our heart, that we can get inspiration. All right. we are very No happy problem. to see you, Gurudev, always. Yes, I'm happy to see all of you. I'm happy seeing all of you. Gorakhpur devotee and other places. गुरुदेव बहुत खुश Saranagati. सारे गोरखपुर के भक्तों को देखकर। हाँ माता जी, आपको क्या बोलना है? शरणागति माता जी। हरे कृष्णा श्री गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीडियंस। शीला गुरुदेव, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी क्लास से शीला गुरुदेव। और शीला गुरुदेव, मेरा ये कहना था, जैसे हम अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और मेरे अंदर जैसे ईर्ष्या आती है, तो अगर ईर्ष्या आती है तो हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम भक्ति में मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और अगर हमको अगले को देख करके खुशी होती है कि हाँ वो हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहा है और मेरे अंदर खुशी होती है, तो क्या हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं?
मेरा यही क्वेश्चन था शीला गुरुदेव। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। शीला गुरुदेव, शरणागति माता जी, क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज वेरी थैंकफुल. She is offering her gratitude for the wonderful class which touched her. She is asking that if we are becoming envious to see another devotee making advancement, is it a sign of enviousness? And if we are becoming happy by seeing other devotee making advancement, that means we are not envious. She is just asking the question. Is it the right understanding? Since the line was not good, your voice was break. But what I will try to say, what I understand, is to be envious of another devotee making advancement is a sign of no maturity in Krishna consciousness. हाँ, अगर हम ईर्ष्यालु हो रहे हैं किसी भक्त की भक्ति को देखकर कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका मतलब हम अपनी भक्ति में परिपक्व नहीं हैं, अपरिपक्व हैं. It means that we are not making advancement. इसका मतलब हम अपनी भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं. रंजना माता जी. Narada Muni explains Yes, yes, Shila Guru. Narada Muni explains that devotees are not envious because they are going back home, back to Godhead. So they cannot envy common sinful people in the material world who are suffering. They have no envy because they are going back to Godhead, where everything is extremely meaningful and permanently in existence. So they're not envious. Envious people are material, not devotees. श्री नारद जी पहले स्कंद में यह पुष्टि करते हैं कि भक्त कभी भी किसी से ईर्ष्यालु नहीं हो सकता, क्योंकि वो जहां जा रहा है वो स्थान महान ऐश्वर्य से भरा हुआ है, तो वो इस संसार की गंदगी को देख के क्यों किसी से ईर्ष्या करेगा. यहाँ तो सब कुछ गंदा ही है, जहां वो जा रहा है वो बहुत महान है, इसलिए वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करेगा. और जो ईर्ष्या करता है वो भक्त नहीं है, वो भौतिक है, या उसको बोलेंगे कि वो भौतिकतावादी भक्त है. When a devotee is happy seeing the progress of another devotee, that means that devotee is making advancement. और जब कोई भक्त दूसरे भक्त की भक्ति को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, गदगद होता है, इसका मतलब वो भक्त अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहा है. So we can check if we are making advancement by how we respond to devotees who are making advancement. Are we happy to see devotees making advancement? That means we are making progress. If we're not happy to see devotees making advancement, that means we are not making advancement and we are simply materialistic devotees. तो हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं या देखकर कि हम अगर आगे बढ़ते हुए भक्तों को देखकर क्या हम प्रसन्न हैं, क्या हम बड़े खुश हैं, कि क्या हम दुखी हो रहे हैं और क्या उनसे हम ईर्ष्या हो रहे हैं. अगर हम ईर्ष्यालु हैं तो हम एक भौतिकतावादी सामान्य भक्त हैं. Yes, When Ladini Mataji was with us, remember we said there were two. yes. And we all bent to her side because of the way she was dealing with us. Naturally, everybody likes to feel comfortable with the person who is encouraging you in Christian consciousness. So and she was very much into that. So naturally, all of us were following her automatically. जैसा हमने आज सुना कि लादनी माता जी थी और एक माता जी और थी महाभागवती माता जी,
स्वाभाविक रूप से हम सब ने लादनी माता जी का ही पक्ष लिया, क्योंकि उनके अंदर ये गुण थे, वो हम सबको प्रोत्साहन कर रही थी, वो ईर्ष्या से रहित थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सब उनके साथ हो लिए। The other devotee became also envious. और इस प्रकार जब ऐसा हम लोगों ने किया, तो जो दूसरी माता जी थी वो ईर्ष्यालु हो गई। But Ladini Mataji was not affected. She was not affected. लेकिन लादनी माता जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, Because she's very busy taking care of us, and we're very busy associating with her. So she has no space for envy. She was free. क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगी हुई हैं, ख्याल रखने में, सेवा करने में, उनके पास समय ही नहीं है ईर्ष्या करने के लिए। All right? Yes, Srila Gurudev. Gurudev, we have two raised hands. First is Suddha Yes. Bhakti Mataji, and then second is Anurag Prabhu. Okay. Yes, Suddha Bhakti Mataji, आप आनंद करके बोल सकती हैं। हरे कृष्णा श्रील गुरुदेव। With the Bhakti Nilanjana. आपका इको आ रहा हरे है। कृष्ण। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, Then बोलिए। two of them open their phones. गुरुदेव, That's what. लोगों ने और हिंदी क्लासेस चाहिए इसी तरह की। हाँ, बोलिए। अभी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ, नाउ इट्स ओके, साफ है। जैसे आज की क्लास थी ना प्रभु जी हिंदी में, वैसे ही क्लासेस और हो सकती हैं। Srila Gurudev, she is asking your permission that today class was in Hindi, we all could understand. So is it possible to have more classes in Hindi like that? Why not? हाँ, बिल्कुल गुरुदेव बोल रहे हैं, कर सकते हैं। थैंक यू We're प्रभु speaking जी। for it. We're speaking for you to hear. So whatever can make you to hear, we will adjust to it. हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको प्रभावित होना चाहिए, तो अगर आपको इससे है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे आगे चलकर। वी विल प्लान Srila गुरुदेव अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच गुरुदेव। हरे कृष्णा नमस्ते। Hare Krishna. अनुराग प्रभु। प्रीतिमय माता जी। Yes. Hare Krishna, Shri Gurudev, Dandavat Pranam. Thank you so much for giving this wonderful class. We were both in a very low consciousness level, but after hearing you, a lot of churning happened and feeling much better now. So I had two questions. Guruji, continue करूं? Radha Kumaar ji. Yes, So, ma'am. Yes, so first question is when we heard from you about Ladini Mataji, it seems and it sounds like such personalities are coming empowered, like they are straight coming out of the past times. And then we see everything for when all of their activities are devotional and so powerful. So, so for people like me who are so conditioned and would have not have any contact with bhakti in the past life, so can I be hopeful to become like that in this lifetime itself, or maybe at least have the hope of becoming like them? Because it seems very difficult, and it seems like they are empowered, they are from the Leela. So this is first question. I'll translate it in Hindi. yes, माता जी। सो हम शिला गुरुदेव से कह रहे थे कि बहुत कृतज्ञ हैं कि इस मीटिंग में आने से पहले प्रभु जी और मेरी चेतना इतनी अच्छी नहीं थी, पर गुरुदेव ने ये क्लास देकर एकदम अंतर मंथन कर दिया हमारा, और बहुत बेहतर लग रहा है अब इस क्लास के बाद। तो पहला प्रश्न था कि जब हम श्रीमती लादिनी माता जी के चरित्र से सुन रहे थे कि वो कितनी महान है, तो श्री गुरुदेव भी बता रहे थे कि ऐसा लगता था कि वो सीधा चैतन्य लीला से आई हैं, पार्षद चैतन्य महाप्रभु की पार्षद रही होंगी। तो पर हम अपने आप को देखते हैं कि हम तो बद्ध अवस्था में है, सब कुछ करना कितना मुश्किल लगता है, हमेशा कितनी चुनौतियों से भरा लगता है। तो क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है कि इस जन्म में ही हम उनकी तरह बन पाएंगे, या इस जन्म में तो छोड़ें, पर ऐसी उम्मीद भी है क्या कि आने वाले पता नहीं कितने जन्मों में हम
उनकी तरह महान बन पाए। If we have the association of a pure devotee, we will be promoted. अगर हमें एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। How we really know we have a pure devotee? How will we How see, will no? we know? Can we recognize I have a pure devotee whose mercy I can be promoted in Christian consciousness? हम कैसे जानेंगे ऐसे शुद्ध भक्त को जिसकी कृपा से हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? कैसे पहचानेंगे? You should follow the instructions. अगर आप आदेशों का पालन करेंगी, We should follow the instruction. ये शिला गुरुदेव, If we follow the instructions, अगर we will हम know पालन the करेंगे, potency. We will know the potency. अगर जब आप एक शुद्ध भक्त गुरु का आदेशों का पालन करेंगी तो आप उन आदेशों से समझ पाएंगी कि इसमें बहुत महान शक्ति है हमारे जीवन को संपूर्ण बदलने की। There's no one who is so fallen that cannot be picked up. ऐसा कोई भी पतित गिरा हुआ पापी नहीं है जो कि आगे नहीं उठ सकता। It's a matter of taking what is available with good consciousness. मात्र देरी इसकी है कि हम अच्छी चेतना से सोच समझकर अपना आदेशों का पालन करना शुरू कर दें। There is no pure devotee who will come with a cutlass and tear the head into two and put back today and stitch it. You don't have pure devotee like that. ऐसा कोई भी शुद्ध भक्त न कभी आया है न कभी आएगा जो हमारे सर को दो हिस्सों में तोड़ के और हमारे सर के अंदर भक्ति को भर दे। ऐसा कभी नहीं होगा। They will do it through your ear. वो हमारे कर्ण के माध्यम से, कान के माध्यम से ही करेंगे। And through how you value their presence. और हम उनकी उपस्थिति का कितना फायदा उठा रहे हैं इस पर निर्भर करेगा हम किस स्तर तक पहुंचेंगे। I have mentioned many times. मैंने बहुत बार बोला है, When I am with my spiritual master, I'm very careful and attentive. I see everything that he does. मैंने यह बहुत बार लेक्चर्स में बोला है कि जब भी मैं अपने गुरुदेव के साथ था मैं 24 घंटे हमेशा बहुत ही सतर्क ध्यान पूर्वक तरीके से देखता था मेरे गुरुदेव हर एक वस्तु कैसे कर रहे हैं। Because in my mind, क्योंकि मेरे मन में I know मुझे पता था, this is my fortune. मुझे पता था कि ये व्यक्ति मेरे सौभाग्य का उदय करेगा That is my fortune. और यही मेरा सौभाग्य बनाएगा। That I can reorganize my fortune, my spiritual master, and I give my attention to him. That is how I became connected. तो मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज ही मेरे सौभाग्य हैं, वही मेरे सौभाग्य को लाने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ही सतर्क, बहुत जागरूक, बहुत ध्यान पूर्वक था। This is a simple science, not philosophy. It's a simple science. यह बहुत ही साधारण सी बात है, कोई महान दर्शन नहीं है। Poison is poison. Either you know or you don't know, it will act if you take it. जैसे जहर जहर होता है, आपको पता हो या ना पता हो, वो अपना काम करेगा। If we value what we have, you see the result. तो अगर हम गुरुदेव की उपस्थिति का लाभ उठाएंगे तो आप अपने जीवन में क्रांतिकारी चमत्कारी परिवर्तन देख पाएंगे। Don't wait until the spiritual master leaves the body before you discover he's a pure devotee. Don't be foolish like that. हमें मूर्ख नहीं होना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए ऐसे भक्तों का जो अपने गुरु को इस संसार से जाने के बाद बोले
कि मेरे गुरु एक महान भक्त थे। If I know. Oh, why didn't tell me my guru is a gopi? Why didn't tell me since? अगर मुझे Yeah, पता no. होता अगर मुझे पता होता कि मेरे गुरुदेव इतने महान भक्त हैं, वो तो भगवान के पार्षद हैं, गोपी हैं, गोपा हैं, तो मैं बहुत कुछ कर लेता। अब क्या In करूं? West, in West Africa, they said, had I known is a foolish person. Had I known, is a foolish person. पश्चिम अफ्रीका में एक कहावत है, अगर मुझे पता होता। यह मूर्खों का स्लोगन है, मूर्खों का If I, नारा है कि if I अगर had मुझे पता होता। known, oh, if I had known how that's a crazy pure dude, I would have seen him like a Yavana. I would have given my life to him. It's a fool. जैसे ठाकुर हरदास के बारे में लोग बोलते थे कि अगर मुझे पता होता कि इतने महान होते तो हमने उनका संग लिया होता। यह मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोलता है कि अगर मुझे पता होता। हमें पता होना चाहिए। Our appetite is not strong. क्योंकि हमें भूख नहीं है, हमें इच्छा नहीं है। We are not very hungry. हमारी भूख बहुत कमजोर है, हमारी इच्छा शक्ति बहुत कम है। If you are very hungry, you will know where there is food. अगर हम बहुत भूखे होंगे, हमको पता चल जाएगा अपने आप कहाँ भोजन है। You will know where there is food. And even if there is a door, you find a way to open it to go and eat. चाहे वो किसी के अंदर लॉक हो, आप जान जाएंगे यहाँ भोजन है, आप निकाल के ले आएंगे क्योंकि आपको भूख है, खाना है आपको। Like Guru Govinda Maharaj said, break all rules, break all principles, break all the barriers, go and take the prema. Break any rule to go and take the prema. परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते हैं, सारे नियम कानून, सारी सीमाएं, सारे मर्यादा, सब कुछ तोड़ दो, जहां आपको प्रेम मिले वहां तक पहुंचने के लिए। Does it make sense to us? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, yes, Gurudev. Okay, here's a second question. Shila Gurudev, now the question is somewhat connected to the previous question. You mentioned that this begins, it can happen if one comes in association of a pure devotee, then things can change. Yes. And specifically in the class, we heard that Mataji was following all the womanly qualities very nicely, like being a mother, she was very diligent towards that. We ourselves also see in our desires and everything that sometimes we want to, I want to basically understand what does it really mean to take Guru's association being a woman, because there's some responsibilities and some duties and we might want to come. Even when girls talk to us and they are searching for a partner, they would say, we want a husband who can always take us to Gurudev. Like we can take take Gurudev's association. And also for me personally, I feel that if anything is binding to homely things, it should not have been there. We could have gone and taken Gurudev's association. So what really elevates and what does it mean for a Mataji to take Guru's association and also do her household duties very diligently, very nicely? That was something I need clarification on. तो मेरा प्रश्न ये है कि हमने अभी अभी श्री गुरुदेव के उत्तर में सुना कि अगर हम दादिनी माता जी जैसे महान पर्सनालिटी जैसा बनना चाहते हैं तो ये संभव है अगर हम एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आए तो, उनके संग को ले तो। और फिर हम और माता जी के जीवन से हमने देखा कि वो कितने एकदम एक माँ के रूप में थी, मतलब जो एक माता जी की ड्यूटी है वो कितने अच्छे से निभा रही थी सुबह से रात तक। फिर हम अपनी इच्छाओं को भी देखते हैं, मतलब कि हमें बहुत बार लगता है कि हम गुरुदेव का संग आकर लें और उनको सर्विस कर पाए, पर साथ ही साथ हमारे घर की कुछ ड्यूटीज भी हैं। और कुछ माताएं हमारे पास आती हैं, पूछती हैं हम शादी ऐसे प्रभु जी से करना चाहते हैं जो हमें गुरुदेव का संग लेने में सहायक हो। तो इन सब चीजों को कैसे समझें? क्या हमें भक्ति में वास्तविक रूप से एक माता जी को अपनी भक्ति में प्रगति करा सकता है, और क्या है श्री गुरु का वास्तविक रूप से संग लेने का अर्थ?
both a man and a woman, they have a responsibilities in the house. They also have their responsibilities for spiritual life. दोनों स्त्री पुरुष दोनों की जिम्मेदारी अपने घर की भी है और दोनों स्त्री पुरुष दोनों की जिम्मेदारी उनके आध्यात्मिक जीवन की भी है। Last week, we were looking at Nardamuni's instruction how a woman should behave towards her husband. पिछले सप्ताह हमने देखा नारद जी बता रहे थे 7वें स्कंद में कि एक स्त्री का कैसा व्यवहार होना चाहिए अपने पति के लिए। She has to support the husband's vows. She has to support the husband's vows. अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना और उनकी आज्ञाओं का उनके व्रतों का सहयोग करना सबसे पहले। Take care of the husband's relatives and the friends because they are part of the husband. पति ही नहीं, पति के संबंधी, पति के मित्र, उनको भी बहुत अच्छे से उनकी सेवा करना। And I remember I mentioned that is there in Indian culture, women do some prayer also for the husband's longevity. जैसे हम लोग देखते हैं भारत देश में स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की उम्र को बढ़ाने के लिए। That is the duty of a housewife. यह एक गृहिणी का कर्तव्य है Because it's necessary to take care of the house. और उनको अपने घर का अच्छे से देख रेख करना होगा, ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी है। Then both of you plan how you also execute your spiritual duties. और इसके बाद आप दोनों को साथ में आकर यह भी ध्यान देना होगा कि आपको अपने आध्यात्मिक कार्यकलाप कैसे करने हैं। Because part of the husband's vow is your sadhana, your spiritual discipline. क्योंकि जो पति की आज्ञा का पालन करना है उसका एक भाग यह है कि हमें अपनी साधना भी करनी है। It is slavery if a woman has to serve tea to the husband till 11 o'clock in the night, serve the husband's relatives and friends 11 p.m. in the night or 12 p.m. That is slavery. That is not what Nadamuni mentioned in the scripture. Our life should be so molded. Proper use this word. Our life should be so molded, both men and women in Christian consciousness. Our life should be so molded that we have to do everything at the same time. We remember Krishna 24 hours. Remember Krishna 24 hours include your duty to the spiritual master, include your own spiritual discipline in their duties, and also your material need. Both of them has to be nicely arranged that they should go on nicely. पति के व्रतों का, पति की आज्ञाओं का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि हम रात को 11-12 बजे तक चाय पिला रहे हैं अपने घर वालों को और फिर बहुत देर में सो रहे हैं, तो साधना कैसे हो पाएगा। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार का दास बनना नहीं है, इस प्रकार का कि हम कुछ भी करते रहें। पति को ये भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से पत्नी भौतिक जिम्मेदारियों को भी निभाए अपने घर की और साथ में अपनी साधना भी अच्छे से कर सके। I have many times repeated Bhagavad Gita 9:27 purport. गीता 9:27 के तात्पर्य में लिखा गया है। Chapter 18, text 65 purport. और 18:65 के भी तात्पर्य में लिखा है। Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, text 13 purport, something. Prabhupada mentioned the same thing, that we should mold our life in such a way that we remember Krishna 24 hours daily. This is our responsibility. श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार भगवत गीता और भागवतम के कई श्लोकों में ये बात लिखे हैं कि हमें अपने 24 घंटे को
इस प्रकार से नियोजित करना है, योजनाबद्ध करना है कि हम 24 घंटे कृष्ण के लिए काम करें, कृष्ण भावना भावित हों। यह पति की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की योजना बनाएं और पत्नी उसका सहयोग करें। We should mold our life in such a way that we remember Krishna 24 hours. तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना होगा कि हम 24 घंटे कृष्ण का चिंतन कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। This is our responsibility. We don't have someone to do that. We have to do this. और यह हमें ही करना है, पति पत्नी को, कोई और नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। Yes, I just saw it already. So we should do this. Probably don't say the Guru should come and do this. We should do this. तो यह काम गुरु नहीं करेंगे, यह काम पति पत्नी को मिल के करना है साथ में, कि कैसे 24 घंटा वो कृष्ण भावना भावित रहें। 9, 18, 68, 65. That is our Gita. It's also in Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, in the first canto, chapter 5. I'm looking for it. I just saw it was there. All right, yeah. Bhagavatam, yes, thank you. So this is a proper game. Yes, 1865. And Bhagavatam, canto 1, I think it's chapter 5 or chapter 6. I'm looking for it. Yeah. I think it's, yes, chapter 5. Opponents can just make it 18. Yeah, that's it. Yes, 13. Yeah, I was saying 13. Okay. So, yeah. So this is what the prophet is. He repeating this many times. What is the purpose of repeating? Purpose of repetition is that thing is important and it should be remembered. प्रभुपाद जी बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम इसकी जिम्मेदारी ध्यान रखें। So it is our duty to, okay, husband and wife, we sit together and organize ourselves. This is how we arrange ourselves so that we can, both our material and spiritual activities can go on. We should do this and we'll be happy. If we don't do this, the Guru will not come to sit you down and tell you, okay, do this. That is they say micromanagement. That is not the way. But the formula has to be given to us. Now we have to apply it. अब गुरु ने हमको सब बता दिया, सब हमको बता दिया प्रभुपाद जी ने। अब पति पत्नी को साथ में आके बैठ के इसको योजना बनाना होगा। अब उसमें गुरु आपके घर में आके आपको नहीं जाएगा, आपको ये करना है ये नहीं करना है, अब ये हमें खुद करना होगा। कैसे करना है हमको देखना होगा। All right, Hare Krishna. Thank you very much. ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। Srila Gurudev, thank you very much, and we are very, very grateful to you for very affectionate presentation of Mother Ladini. And I hope we can remember this class and note down and able to follow. And when next time we meet you, we can show some changes in our behavior, in our life. Yes, we should hear so we can apply. And if apply, there will be changes. That is certain. Yes, Srila Gurudev. Srimati Ladini Devi ki jai. Bye. Prabhupada ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Join us. See you later. Sai Maharaj ki jai. जय Maharaj ki See you jai. later. जय Jai. थैंक यू श्रीला गुरुदेव। जय हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन बाद हमारी आज ये मीटिंग हुई। जस्ट 2 मिनट थोड़ा सा सब लोग रुकेंगे तो हम लोग
कल सोमवार से साधना अपना हम लोग भर ही रहे हैं, सब लोग फिल कर रहे हैं। अब हम लोग हर 2 वीक में गुरुदेव को मिलेंगे। गुरुदेव नहीं आएंगे तो हम लोग आपस में मिलेंगे और अपनी साधना को सबके सामने दिखाएंगे ताकि हमें कुछ बल मिले। और हम लोग चाहते हैं कि अपनी साधना हम लोग बहुत अच्छे से करें। और जैसा गुरुदेव ने बताया कि हमारे पास गुरु हैं लेकिन हम उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गुरु का, उनके प्रेजेंस का लाभ नहीं उठा रहे हैं। और जब गुरुदेव चले जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे गुरुदेव बहुत महाभागवत परमहंस शुद्ध भक्त थे। तो यह मूर्ख व्यक्ति का स्टेट का कहना होगा कि हमारे गुरुदेव अगर होते तो हम बहुत अच्छा कर लेते। आज हमारे गुरु हैं तो हमें इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है। इतना अंतरंग संबंध और संग शायद ही हमको आज इस पृथ्वी पर प्राप्त हो इतनी अधिक मात्रा में। तो हम लोग फिर हर महीने मैंने आज प्लान किया है कि एक भक्त चरित्र के बारे में हम आपस में आके कभी गुरुदेव से कभी किसी और भक्त से मिला करेंगे ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले, उत्साह मिले, हमें अपनी सेवा साधना और आपस के संबंध में आगे बढ़ने के लिए। अभी हम लोग कुछ ही दिनों में सुबह जप भी शुरू करेंगे, डेली रेगुलर जप जैसे गुरुदेव करते हैं 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, उसी स्टाइल में जूम पर और फेसबुक में दोनों में रहेगा। मेरा बात चल रहा है अभी। और इस प्रकार हम लोग महीने में मिलते रहेंगे और अपनी ये मीटिंग साधना हम अपने आप को फिल करते रहें। साधना भेजना बहुत जरूरी है, भले हमारा साधना बेकार ही क्यों ना हो। हम सब लोग बेकार हैं, जो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है सब इक्वल लेवल पर ही हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, ईमानदारी से ऐसे आगे बढ़ते रहें। भगवान हमारी ईमानदारी को देखकर हमें प्रमोट कर देंगे एक दिन बहुत उच्च अवस्था में। और गुरुदेव बता रहे थे कि लादनी माता जी के स्तर तक हम लोग पहुंच सकते हैं अगर हम एक शुद्ध भक्त का हमें संग प्राप्त हो। तो संग तो हमको प्राप्त है लेकिन हम लोगों को उसका फायदा उठाना है। और हम ऐसे भक्तों से भी जुड़े जो भक्त शुद्ध भक्त से हमको जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, उसका सार क्या है बता सकते हैं। तो इस प्रकार हम सबका आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन है। जैसे लादनी माता जी और गुरुदेव आपस में दूसरे से बहुत क्लोज थे। लादनी माता जी भक्ति तीर्थ महाराज आपस में दूसरे के क्लोज थे, सारे भक्त क्लोज थे। इस प्रकार जब हम साथ में मिलकर ऐसा करेंगे तब हम इस 3 गुणों को आसानी से पार कर जाएंगे और बढ़ जाएंगे। और हमने सीखा आज कि कैसे माता जी देख रेख करती थी दूसरे भक्तों का। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग भक्त, हमें बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में कि आप तकलीफ में हो गया, हमको पता होना चाहिए और हमें एक दूसरे भक्त का हेल्प करना चाहिए। जो गृहस्थ है उनकी जिम्मेदारी है कि वो सन्यासी ब्रह्मचारियों का ध्यान रखें। जो वैराग्य आश्रम में उनका ध्यान उनका होना चाहिए कि वो इस प्रकार के तरीके लेके आते रहें जिससे कि सबका उद्धार हो। इस प्रकार हमारा एक टीम वर्क होना चाहिए, बहुत ही पारिवारिक माहौल जो कि कलयुग में बहुत मिसिंग है। इम्पर्सनल बिहेवियर होता है हमारा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा लगी। जस्ट अचानक मेरे मन में कल ही आया था कि हम सुनते हैं माता जी को, मुझे कहीं से तो मन में आ गया। तो पेंडिंग था, गुरुदेव मुझे बोले थे पहले कि मैं आपको बताऊंगा एक दिन लादिनी माता जी के बारे में। और कल गुरुदेव कॉल किया शाम को 6 बजे और वो तुरंत तैयार हो गए क्लास के लिए। तो बहुत अच्छा है। और बहुत ही जल्द व्यास पूजा आ रही है, 8 जून और 20 जून दोनों डेट्स हैं। तो 8 जून को अभी भक्त लोग जान गए हैं, पांडव एकादशी को भी आविर्भाव है। तो वो लोग 8 जून को ऑनलाइन व्यास पूजा होगी। अभी हमारे पास टाइम है कुछ, हम लोग अपने को तैयार करें। 22 जून को गुरुदेव इंडिया आ रहे हैं। हम लोग 18 जून बोल रहे हैं, अनुराग प्रभु 18 जून की एकादशी है, निर्जल एकादशी। उस दिन गुरुदेव का तिथि के अनुसार रियल जो है पंचांग के अनुसार उनका आविर्भाव है। हम लोग अपने आप को तैयार करें अभी से और एक दूसरे भक्त जो लाइक माइंडेड हैं, जिनका समान हमें हृदय भाव मिलता है, हम अपना एक ग्रुप बनाएं, अपनी सहायता लें, एक दूसरे का ख्याल रखें, सेवा करें, कोई गिर रहा है तो उसको ऊपर उठाएं। इस प्रकार हम देखेंगे कि जब गुरुदेव आएंगे
तब उनका हम संग वाकई में ले पाएंगे, कि हम योग्य बन चुके होंगे, उस वो पात्र हमको मिल चुका होगा जिस पे हमको कृपा मिलेगी। तो बहुत जरूरी है। और हम सब भक्त, जैसे मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में, हम सब भक्त एक आध्यात्मिक योद्धा बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर। तो हम सबके जीवन में यह परिवर्तन होना चाहिए आगे चलकर। या परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हम अपने गुरु को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो हम सब लोग को अपनी साधना में अच्छे से दिखाना है, और हम ऑडियो भी भेजते रहेंगे हर हर वीक, कोई ना कोई अच्छा सा ऑडियो। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है? Thank you, Prabhuji, for such a wonderful class. कौन बोला? जी प्रभुजी, विश्वम्भर दास। हाँ, हरे कृष्णा। यस। और हमारे बीच विष्णुजन प्रभु हैं, जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत ही हम्बल डिवोटी हैं, जो तुरंत सब बातों को मानते हैं। उनका विवाह फिक्स हो गया है। उनका विवाह है 17 नवंबर, कार्तिक का नेक्स्ट डे। तो ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत अच्छे डिवोटी हैं वो, और उनका बहुत गुरुदेव से लगाव है उनका। वो हमारे ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं। अब ये गोविंद प्रेम को छोड़ चुके हैं। और भी जो भक्त जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन फाइन है, पता होना चाहिए, है ना? अगर टाइम पे रिपोर्ट नहीं आएगी तो फाइन देना पड़ेगा, और फाइन के बाद फिर डांट दिखानी पड़ेगी। तो ये ग्रुप बनाया गया है, ये बहुत स्पेशल ग्रुप है, इसको आप लोग कुछ वर्षों में पहचानेंगे। ये बहुत ही क्रांतिकारी ग्रुप है ये। क्योंकि जिसकी साधना अच्छी होगी वो संसार में कुछ भी कर सकता है। वो अपने गुरु के सारे आदेशों को जमीन पर ला सकता है, काम कर सकता है। तो हम सब लोगों को एक दूसरे की हेल्प लेनी है, ताकि हमारी साधना डेली का एटलीस्ट हमारा उठना, 16 माला जप, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना डेली हम प्रियोरिटी से करें, प्राथमिकता दें पहले कृष्ण को। ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हम प्रभु लोग जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनिए। हाँ बोलो। प्रभु जी, आपने जो महाराज से आप ये जो कह रहे थे महाराज से चरित्र चर्चा के लिए आप हमेशा के लिए बात करेंगे, मतलब कभी कभी लेने के लिए, तो आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो परम गुरुदेव के ऊपर भी एक बार लेक्चर देंगे, वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के ऊपर। यस, बहुत जल्दी आने वाला है उनका तिरुनाल दिवस, हम लोग ठीक करेंगे। है। यस, नेक्स्ट टाइम हम लोग परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। थैंक यू प्रभु जी। वेरी गुड, पावरफुल, बहुत अच्छा। लादनी माता जी अपना गुरु मानती थी उनको एक प्रकार से। यस प्रभु। बहुत अद्भुत पर्सनालिटी हैं भक्ति जी, तीर्थ। हम लोग उनके बारे में सुनेंगे नेक्स्ट मंथ में। यस प्रभु जी, इसीलिए उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छा है जी। यस, ऐसा ही सुंदर सा हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिसको जाना है मेरे वो बताइए। हाँ बोलिए। ऐसे टाइम पे मीटिंग रखना कि मतलब मैं क्लास ज्वाइन कर सकूं। 4 बजे से 4 बजे की क्लास है हर दिन, और संडे के दिन 3 बजे से टेम्पल में रहती है। सारे नियम करने पड़ेंगे। क्या क्या? सुना अभी आपने? क्या सुना क्लास में आज? सारे नियम कानून, सारी सीमाएं, सारी मर्यादा, सब सेवाएं छोड़नी पड़ेंगी एक दिन के लिए। 1 महीने 1 दिन में करना है ना। नहीं तो टेम्पल की बस छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। कोई बात नहीं है, वो टेम्पल में भगवान आपको प्रेरणा कुछ न कुछ देंगे, आगे चल के देखते हैं। अच्छा। सब हो जाएगा मैनेज। और 2 दिन वाली ना 4 बजे से पहले रखना। ओके।
ठीक ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।